Hello everyone, welcome back. Or I hope you all are doing fine and great. So आज का जो लेक्चर है वो that is all about uh, creating schedules, quantity takeoffs. For example, let's say we are done with the modeling. Okay, हमने concrete मॉडलिंग की एंड देन उसके बाद हमने reinforcement प्लेस किया अपने स्ट्रक्चर में, ठीक है। एंड लेट्स से इट इज ऑल कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है। मॉडल आपका कंप्लीट है, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग आपने कर दी एंड यू हैव टेकन द अप्रूवल फ्रॉम द इंजीनियर्स और मैनेजर्स एज वेल, ठीक है। उसके बाद अब फॉर एग्जांपल यू हैव टू टेक आउट द क्वांटिटीज, राइट। तो क्वांटिटीज कैसे टेक आउट करते हैं, कैसे शेड्यूल बनाते हैं हम लोग, वो आज आई टेल यू इन दिस लेक्चर, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन and if it is visible, just let me know. Okay, I'm sharing the Revit screen. I hope this is visible to you, right? Yeah, this is visible. I can see in the screen. In the preview screen, I can see the screen is visible to you, right? So if you recall, this was our assignment on which we were working, right? This was the sheet. I mean, we prepared this sheet, all right? And if you want to see the model, let me show you the model as well. Here we go. It is taking some time. Yeah, this is the model, right? This is the structure model of that control block building जिस पर हम काम कर रहे थे। ओके, हमने कुछ reinforcement डिटेलिंग की थी। ऑब्वियसली इट विल टेक यू नो वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट द डिटेलिंग इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है। बट इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा अभी बिफोर गोइंग फर्दर, ठीक है। कैसे हम उस टेक्निक को लेवरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसमें हमने राफ्ट फाउंडेशन में वी प्लेस्ड सम रिइंफोर्समेंट एंड ऑल, ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। एंड स्टीरअप्स हमें अगर लगाने हैं तो हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, राइट। और आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट प्लेसमेंट ऑफ रिइंफोर्समेंट एंड ऑल। इसमें तो हमारा टॉप एंड बॉटम दोनों स्टील है, बट आई थिंक in the longitudinal side we do not have bottom steel. Yeah, bottom steel is missing, I think. Or is it something like bottom steel is missing, right? So we can mirror this, no problem. Let us just select this and then we can mirror this. So you need to go to the other sections, maybe L section of this. Okay. Yeah, you need to go to L section, and in L section steel is there, but why it is not visible there? Due to some visibility issues, it is not visible, but still is there, right? Now. So yeah, I was just these were the details which we prepared. Detail zero. This was about the column. Okay, and then we prepared this detail as well. Okay, this was showing the bottom reinforcement in the raft foundation. Detail two was about column. Okay, and then we had this detail as well. राइट। सो दीज वर द डिटेल्स विच वी प्रिपेयर्ड। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लेट्स से थोड़ा सा और फास्ट करना है अपना वर्क, ठीक है ना। यू हैव टू बी एफिशिएंट एट योर वर्क। सो आप कितना क्विकली, कितना जल्दी, इफ यू आर डन विद अ कॉलम और अ बीम, तो आप कैसे with the help of some commands you can quickly do the detailing. So that is what I want to tell you. Let us go to the C section. This is the C section. Let me increase the extent. You can use these, I know, buttons or crop view, crop region. You can also use as well. So basically, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल सेट करता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा कॉलम है जिसमें मैंने डिटेलिंग की है, दिस पर्टिकुलर कॉलम, ओके। So this is on which grid? This is on C grid. Okay, so I need to cut a section on this particular grid. Let us go to the level one, and I need to have one
cross section from here, or I can shift this cross section. That is also fine. Let us shift this only. इसी क्रॉस सेक्शन को शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम क्विकली दूसरे मॉडल्स, दूसरे कॉलम्स में स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। राइट, सो आई टेल यू हाउ। इसको हम अभी के लिए ऑफ कर देते हैं, हाइड इन व्यू एलिमेंट्स, ठीक है। सो ये ग्रिड्स को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसे करके हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। नाउ दैट्स ए, ये कॉलम आपका कंप्लीट है, ठीक है। इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ जरा, और लेट्स से दिस कॉलम इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है जी। मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, मैंने इस कॉलम को कंक्रीट को सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी आई थिंक नॉट सेलेक्ट, इट इज नॉट सेलेक्टेड। दोबारा आई ट्राई विद द हेल्प ऑफ व्हाट, टैब। Why I am not able to select this properly? I'm trying to select this, but there's something is wrong. Okay, let's try it again. Or let me go to the section. This is section, all section. Right, I'm shifting this section as well. मैं इसको थोड़ा shift कर रहा हूँ near to this particular column जिसमें मैंने डिटेलिंग की है, ठीक है। तो एल सेक्शन में चले जाते हैं, एल सेक्शन चेक कर लेते हैं, एल सेक्शन में विजिबल है या नहीं। यस, इट इज विजिबल। मेरा कंसर्न है कि मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैंने हाइड कर दिया, और इसको भी मैं सिमिलरली हाइड कर देता हूँ। नाउ दिस इज द कॉलम जिसको मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, बट ये सेलेक्ट हो नहीं पा रहा है। उसका कुछ रीजन है क्या? व्हाई आई एम नॉट एबल टू सेलेक्ट दिस? What is this? Why I'm not able to select this? Tab. I'm pressing tab as well. So related warnings. Let us see. There are identical instances in the same place. This will result in double counting schedules. Warning one. Mm, column. It says there are two columns. This is something very, very vague. It should not be there. ये भी डबल है क्या? अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैंने डिलीट किया, यस, there was something related to the duplicacy of the column. So now I have deleted the duplicate column, ठीक है, राइट। तो अब मैंने उस कॉलम को डिलीट कर दिया, डुप्लीकेट कॉलम था एक, इसके ऊपर ही बना हुआ था, ठीक है, तो वो मैंने डिलीट कर दिया। नाउ माय इंटेंशन इज, मैं इसमें क्या चाहता हूँ कि इस कॉलम में मैंने डिटेलिंग कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल इसी तरीके की डिटेलिंग मुझे और कॉलम्स में करना है। तो अब मैं एक एक कॉलम को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। मैं करने में मुझे काफी घंटे, आवर्स और डेज भी लग सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, एक कमांड है, इसको पहले आप सेलेक्ट करिए कॉलम को, जस्ट ओवर ओवर योर कर्सर नियर द कॉलम, ठीक है। इसको आप जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर रिइंफोर्समेंट में प्रोपागेट रीबार का ऑप्शन इनेबल हुआ है। ये प्रोपागेट रीबार का ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करें, एंड देन जितने भी कॉलम में आप जितने भी कॉलम में आप सिमिलर एनफोर्समेंट चाहते हैं उसमें आप क्लिक करते जाएं, एंड देन ये आपका क्या करेगा, सिमिलर एनफोर्समेंट प्लेस कर देगा, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। ऊपर भी करना चाहते हैं ऊपर भी करेगा। जहां भी आप अपना रिइंफोर्समेंट प्लेस करना चाहते हैं
वहां पर ये आपका रिइंफोर्समेंट प्लेस करेगा। ठीक है जी, यहाँ पर से आपको फिनिश करना है। बिफोर कमिंग आउट ऑफ द कमांड यू हैव टू फिनिश इट। ठीक है, तो अब आप चेक करेंगे तो आपके कॉलम्स सारे रिइंफोर्समेंट से माला माल होंगे। ठीक है, आई मीन रिइंफोर्समेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। दिस कमांड यू कैन फॉलो, प्रोपागेट। ठीक है, तो प्रोपागेट कमांड को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक कॉलम की, किसी एक गेम की डिटेलिंग कर ली, एंड नाउ यू वांट टू रिपीट दैट, व्हाट आई वुड से, the detailing in all the columns. Let's say आपके पास टिपिकल बिल्डिंग है, टिपिकल फ्लोर प्लान्स है, एंड आपके कॉलम साइजेस सेम है। ठीक है ना, आपके कॉलम साइजेस हाइट वाइज और आपके डायमेंशन शुड आल्सो बी द सेम। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपके अलग अलग कॉलम्स होंगे आप उसमें सेम रिइंफोर्समेंट प्रोपागेट कर सकते हैं, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। 600 बाय 600 के ही कॉलम्स होने चाहिए। 800 बाय 800 में आपने अगर रिइंफोर्समेंट प्लेस किया है तो इट शुड बी 800 बाय 800, बिकॉज यू यू इट्स वेरी लॉजिकल है ना, क्योंकि अगर आपका कॉलम साइज डिफरेंट होगा तो आपका स्टील उसमें इनसफिशिएंट हो जाएगा और उसकी डिटेलिंग अलग हो जाएगी। राइट, तो मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया, कंक्रीट को मैंने सेलेक्ट किया, एंड देन प्रोपागेट का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हुआ। मैंने प्रोपागेट सेलेक्ट किया एंड जिस कॉलम में मुझे स्टील लगाना है उसको मैंने सेलेक्ट किया वन बाय वन। ठीक है, इस तरीके से आप कॉलम सेलेक्ट करें एंड यू कैन प्लेस योर reinforcement एंड देन गो टू, डोंट फॉरगेट टू hit the finish button, right? This is how you can place the column reinforcement. Now second thing is raft में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड उसके बाद बीम्स एंड स्लैब्स में आपको बताना है। Excuse me, I was just having sip of water, right? So yeah, back to the story. Now let us see. For example, this is our what, beams. Okay. Now we want to place the reinforcement in beam. Okay. How to place the reinforcement in beam? For example, this is the cross section. Okay. And I'm intended to place the reinforcement in this particular beam. ठीक है जी. Okay. Go to structure. Go to rebar. Okay. ये टेबल अगर नहीं दिख रही है तो मैंने आपको बताया था कि these three dots you can always click on these three dots, it will be enabled. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बीम के अंदर हमें reinforcement, जनरली हमारा एल शेप जो होती है वो इन द एंड होती है। ठीक है, एंड में हम ऐसे बार को बेंड करते हैं, राइट। एंड जो हमारे कंटिन्यूअस बीम्स होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें कर्टेल करना होता है। तो हमारा रिइंफोर्समेंट कुछ इस तरीके का होता है, जस्ट लाइक दिस। ओके, इस शेप का हम रिइंफोर्समेंट प्लेस करते हैं। तो अभी ये वाई इट इज नॉट प्लेसिंग, बिकॉज मैं राइट प्लेन के अंदर नहीं, आई नीड टू सेलेक्ट द राइट प्लेन। हावेवर अगर आप स्लैब की बात करेंगे तो देखिए स्लैब में ये इट इज इजिली प्लेसिंग द बार्स। ठीक है ना, क्योंकि स्लैब का जो कट प्लेन है वो इट इज क्लोजर टू द स्टील, वेयर एज बीम की अगर हम बात करें तो बीम का प्लेसमेंट मुझे आई नीड टू चेंज। फॉर एग्जांपल करंट वर्क प्लेन में पैरेलल टू कवर, पैरेलल टू कप, let us explore this, it is not still visible, right? And so that means I need to change the work plane. कोई बात नहीं, अभी हम स्लैब का कर लेते हैं, पैरेलल टू वर्क प्लेन। ठीक है, आपने देखा होगा जब हमारा रिइंफोर्समेंट प्लेस होता है तो इस तरीके की चेयर बार्स हम प्लेस करते हैं, बिकॉज वी नीड टू कर्टेल द स्लैब रिइंफोर्समेंट। ठीक है ना, हमें स्लैब में रिइंफोर्समेंट कर्टेल करना होता है, इस तरीके से हम प्लेस करते हैं, राइट। अगर जिसको नहीं क्लियर है वो यहाँ से देख ले, और वो थोड़ा स्ट्रक्चरल एनालिसिस की ड्राइंग्स को अगर ओपन करेंगे तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि इस तरीके से हम स्लैब्स में बार प्लेस करते हैं। यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट होता है और यहाँ पर नेगेटिव इन्फोर्समेंट की वजह से हमें यहाँ पर ऊपर कर्टेल करना होता है, और यहाँ पर हमारा मेन स्पैन नीचे की तरफ से भी आने देना होता है। ठीक है, तो दिस इज इन द क्या कहते हैं आपका, स्लैब में हो गया। अब यहाँ पर एक स्टील है ये, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एंड व्हेन यू सी द प्लेसमेंट ऑप्शंस रिबार सेट, सो यू विल सी सिंगल बार इज देयर।
बट आई वांट मैक्सिमम स्पेसिंग, विद मैक्सिमम स्पेसिंग दैट मीन्स जितना भी मेरा स्पैन ऑफ द स्लैब है ये पूरी स्पेसिंग को, जितनी स्पेसिंग मैं देना चाहूंगा उतने में डिवाइड कर देगा, ठीक है। और बार का साइज भी मुझे चेंज करना होगा बिकॉज इट इज 25, जो कि नहीं होता है। लेट अस गो फॉर 12 और मैक्सिमम 10, 10 डाया का, ठीक है जी। 10 डाया का मैंने 150 सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम स्पेसिंग के साथ प्लेस कर दिया, राइट। 10 डाया, दिस इज ऑल्सो 10 डाया, दिस इज 25, आई नीड टू चेंज इट 10, एंड इसका स्पेसिंग भी मुझे चेंज करना होगा यहाँ से, मैक्सिमम स्पेसिंग दैट इज 150, ओके 150, ये यहाँ से हो गया। एंड इसको भी मैं सेलेक्ट करूंगा एंड देन आई चेंज H10, और I will also change the number of bars from here. So maximum spacing के साथ I'm placing, I'm giving 150 mm spacing, right? So if you go to the L section, then you will see कि ये वाले bars हमारे place हो गए हैं. I'll show you in the L section. Don't worry. See, this particular way में हमने place किए हैं स्टेट bars, right? यहाँ से हमने सेक्शन कट किया है तो इसलिए हमें इतने ही पोर्शन में ये विजिबल है। एडेड बीन केस के हम पूरे में लगाते तो ये हमें पूरे में विजिबल होता, बट 3D में मैं I'll show you in 3D as well so that you have an idea. Where is that? Where is that? Maybe. I think because I need to select those. I think here it is. I need to select the unobscured view. That is why I'm not able to see that. No worries. I'll select and I'll go visibility settings, visibility graphics states, and I'll go to unobscured view, right? Then maybe I'll be able to see in the 3D. Here we go, right? So this is in the one direction. Okay, अभी हमें ऐसा जाल बनाना है दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरफ इस तरीके से हमें दूसरी डायरेक्शन में भी स्टील को फिक्स करना है। दिस इज जस्ट ओनली इन द वन डायरेक्शन। अच्छा, आपको कुछ लिमिटेड चीज को अगर सेलेक्ट करना है तो यू कैन गो टू सेक्शन बॉक्स। सेक्शन बॉक्स से क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर चीज को आप देखना चाह रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्शन बॉक्स आप उसको उतने ही पोर्शन को विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे वो स्लैब देखनी है, ठीक है, नीचे से भी मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ज्यादा छोटा नहीं करना है, स्लैब पे चला, यस। एंड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट एज वेल, मैंने इसको छोटा किया जितना मुझे रिक्वायर्ड है, ऊपर से भी मैंने इसको छोटा किया, ठीक है, इस तरीके से। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द स्लैब पार्ट जहाँ पे मैंने स्टील प्लेस किया है, राइट। सो दिस इज ओनली इन द वन डायरेक्शन, ऐसे मैंने प्लेस किया। अभी मुझे ऐसे भी प्लेस करना है, आई शो यू हाउ। सो आई गो टू एल सेक्शन and then I'll select that reinforcement, okay, this type of reinforcement or dia. First of all, I will change the dia and then I'll go to placement like this, okay, or I'll select this steel and then place with the maximum spacing. Don't forget to do this maximum spacing, and maximum spacing will be 150 mm, right? Okay. Also, do not forget to go to the graphics visibility state and select this 3D view, 3D unobscured view, unobscured. Then only you'll be able to see in the 3D. Otherwise, you won't. Now go to 3D view. Okay. And 3D view में आपको ये स्टील प्रॉपर जाली के साथ यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सी कि इस तरीके से आपका साइड्स पर होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है, सो यू विल सी कि इस तरीके से हमारा स्टील प्लेसमेंट होता है वहां पर, ठीक है। आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू ऑल। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना सिंपल तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है ना। ये टेपर्ड बार्स है, शेयर बार्स है, जिस तरीके से हमारा जनरली
स्लैब्स में स्टील लगाया जाता है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल, अब जो बात है वो ये है, मान लीजिए मैंने स्टील सेलेक्ट किया, ओके, एंड आई सेलेक्ट दिस एज वेल। दोनों स्टील मैंने सेलेक्ट किए, एंड whether that you know that command is still applicable or not. You see, I can't see the propagate bar option over here. That means I can't use that command to propagate in what do you say, in the other portions, right? मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, and then let us see propagate command is there or not. Again, it is not there. That means I can't propagate it. I think so. What is this? Propagate rebar option is there. Okay. I'll select this slab, and and what else? हम्म, यहाँ पर लगा दिया इसने, यहाँ पर, यहाँ पर भी लगा दिया। So it is placing at some places, but not at all places. Why is it that? That is something crazy. It is outside. We need to delete it. This is something overlapping. Delete this. Right. This is in one direction. Going out. ठीक है, यहाँ पर भी कुछ मिसप्लेस है, तो एक बार यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, नो वरीज, और कंट्रोल की हेल्प से आप इसको भी सेलेक्ट करें, सारे स्टील को सेलेक्ट करें। ठीक है, वंस यू सेलेक्ट ऑल द स्टील, ये आपने पूरा स्टील सेलेक्ट किया, और गो टू होस्ट, प्रोपागेट रीबार, एंड देन ट्राई टू लुक फॉर द होस्ट ऑप्शंस। ठीक है, इस तरीके से I'll tell you the reason why it is not happening. I'll tell you the reason. Don't worry. Okay, don't worry. I'll tell you the reason as well. ठीक है, अभी मैंने मान लीजिए फिनिश किया, सो ये प्रॉपरली इसलिए नहीं लग पा रहे हैं बिकॉज द साइज ऑफ द स्लैब इज नॉट सेम। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू, अगर हमें प्रोपोगेट रिबार वाला ऑप्शन यूज करना है तो वी शुड बी प्रीटी मच क्लियर कि हमारे जो साइजेस हैं, डायमेंशंस हैं, दोज शुड बी सेम, देन ओनली विल बी एबल टू टेक द हेल्प ऑफ दिस व्हाट प्रोपोगेट ऑप्शन। ठीक है, तो अगेन हम कहाँ जाएंगे, फिर से हम जाएंगे अपने यू नो यहाँ पर देखिए कुछ स्टेट इसने प्लेस किया है विच इज करेक्ट, और कुछ इनकरेक्ट भी है, कुछ करेक्ट भी है। ठीक है, ये देखिए इनकरेक्ट है बिकॉज द साइजेस आर नॉट करेक्ट, दैट इज व्हाई। सो हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें जब भी प्रोपागेट कमांड यूज करनी है क्लियर वी शुड बी क्लियर दैट कि ये सब वी शुड बी क्लियर दैट कि ये सब कमांड जो है हम सेम डायमेंशन में ही यूज कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर से आप जाइए, और क्रॉस सेक्शंस में आप जाकर फिर से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शंस में जाकर ही आपको काम अपना करना होगा। रिबार में जाइए, select the shape of the rebar, dia of the rebar, and then you can place like this.
ठीक है, एक रो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डू द रिमेनिंग। ठीक है, इस तरीके से। एंड रिबार सेट, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द रिबार सेट, स्पेसिंग एंड ऑल। ठीक है, सो डाया आपने चेंज कर लिया, रिबार सेट आपने चेंज कर लिया, देन look for, check for the, select this fixed number, spacing 150. Do for this as well. Select this is single, select maximum spacing, select spacing 150 mm. Okay, select this, do same for this as well, 150. Okay, this is very important. This is the gist. I mean, this is the crux of, uh, BIM modeling. If you are a BIM modeler, structure BIM modeler or structure BIM engineer, so be careful, guys. Do not take it easy. I mean, lightly. This is really important. Select किया, उसकी spacing यहाँ से change की, maximum spacing, and then provide the spacing as per your need, right? So in the L section, L direction, I have provided the bars, but what about the C section? See, this should look like this, है ना? ऐसा दिखना चाहिए ये। तो विच इज नॉट विजिबल बेसिकली, दैट मीन्स अभी हमें दूसरी डायरेक्शन में जाके इसका जो जाल है, जाली है, वो हमें कंप्लीट करना है। सो आई विल गो टू सी सेक्शन, राइट? सी सेक्शन में मैं आया एंड देन आई सेलेक्ट रिबार, again I'll choose the reverse, same type of reverse. Okay, no, from this direction I need to select L section. Here also the bars are complete, that means I need to select the plane. Now I need to select the plane. Now my current work plane is, I am working in the current work plane, and जो placement of bar है वो भी मेरा parallel to work plane है। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे, पैरेलल टू वर्क प्लेन, बट अब मुझे परपेंडिकुलर टू कवर लगाना है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू कवर, इनटू द पेपर, इनटू द स्क्रीन। ठीक है, अब मुझे ऐसे बार लगाना है, राइट? सो आई विल, हाउ आई विल प्लेस दिस, let me see first. If I'll go to 3D view, what it looks like, पहले मुझे select करना होगा सबको, select similar, all instances visible in the view, right? And then go to visibility state, no, select visible in view। ठीक है, मैंने इसको जाके visibility state में I need to change it to 3D unobscured view। ठीक है, देखते हैं क्या चेंज आता है। ठीक है, यहाँ पर स्टील मेरा लग गया है, बट आई नीड टू प्लेस इट ऑन दी अदर डायरेक्शन एज वेल। सो मुझे एक सेक्शन कट जो किया है मैंने वो यहाँ से किया है, उस और उधर मेरा स्टील, ये कुछ गलत भी लग गया है, इसको मुझे डिलीट भी करना होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स एक डायरेक्शन में लग गया, इस डायरेक्शन में मुझे भी स्टील लगाना है। सो दैट इज माई प्रोसेक्शन। प्रोसेक्शन में ये मुझे दिख रहे हैं, बट इनटू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसमें मुझे लगाने हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट रिबार। ठीक है, ये शेप है मेरी, एंड प्लेसमेंट मेरा रहेगा पहले तो करंट वर्क प्लेन नियर फॉर। ठीक है, करंट वर्क प्लेन इज ओके, बट परपेंडिकुलर टू द cover is what I'm looking for। ठीक है, ये ऐसे मैं लगा देता हूँ अगर, तो देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है।
नाउ गो टू एल सेक्शन। एल सेक्शन में तो सेम चीज है, ठीक है। और सी सेक्शन में मेरा इस तरीके से मैंने बार प्लेस किए हैं, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि छोटे क्यों दिख रहा है। दैट आई नीड टू चेक। अभी यहाँ पर विजिबल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि मुझे अनऑब्स्क्योर्ड व्यू तो ऑन करना होगा। सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस इन द व्यू, ठीक है। गो टू विजिबिलिटी सेटिंग्स, check for unobscured view, correct. Go to 3D view now and check कि what is the issue, स्टील मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ स्टील हमने लगाया है और वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है जी। व्हाइट इज ब्लू, ये देखिए, ये स्टील हमने कुछ यहाँ पर लगाया है जो विजिबल है। आई आई होप यू कैन विजुअलाइज इट, राइट। मैं और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सेक्शन बॉक्स को, then you will be able to visualize it properly। ठीक है, I think you can visualize it properly। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टील इस तरीके से हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है। और अब हमें, अच्छा, आई थिंक ये जाल जो है हमारा कुछ ठीक मुझे लग नहीं रहा है। देयर इज एन इशू, ये मैंने उल्टा प्लेस किया है। अगेन आई गो टू हियर एंड देन आई डिलीट इट, ठीक है। ऊपर की साइड मुझे प्लेस करना है, आई एम डिलीटिंग इट। I will select it again, that rebar, and then I have to place like this, ठीक है। ये है हमारा 1253, लेवल 1253। ओके, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे मैंने ये सारे स्टिक यहाँ पर प्लेस कर। नाउ द जाल इज ओके, जाली बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ विल गो टू 3D, वहां से हम चेक करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हमने स्टील लगाया है। गो टू होम व्यू, और यहाँ से आप विजुअलाइज कर सकते हैं प्रॉपरली कि आपका स्टील लगा है या नहीं लगा, ठीक है। एल सेक्शन में जाता हूँ फिर से मैं, और ये सी सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टील लगा दिया है, ये वाले डिलीट हो जाएंगे। इसको भी मुझे डिलीट करना होगा, ये गलत लगा है, ठीक है। दिस इज ओपन। सो दिस इज हाउ यू प्लेस reinforcement इन अ स्लैब, ठीक है। बहुत इजी है, आपको सिर्फ शेप ऑफ रिबार सेलेक्ट करना है एंड देन यू कैन प्लेस द reinforcement। अब बात करते हैं बीम की। तो बीम में स्टील लगाने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे एल सेक्शन व्यू में, क्रॉस सेक्शन व्यू में लगा सकते हो, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। और आप क्या कर सकते हो, एक सेक्शन कट कर सकते हो, दैट शुड बी अ डिटेल व्यू। किसी भी बीम का आपने एक सेक्शन कट किया, ठीक है, आप उस सेक्शन में गए, डबल क्लिक करिए यहाँ पर, डायरेक्टली दैट सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप आ गए एंड दिस इज योर बीम, करेक्ट। बीम में आपको पता है कि नीचे बार्स होते हैं, ऊपर बार्स होते हैं, राइट। और हमारे
टाइज होते हैं। स्टीरअप्स, टाइज तो हम बोलते हैं, कॉलम्स में स्टीरअप्स होते हैं हमारे शेयर इन्फोर्समेंट। ठीक है। तो ओके, आई गो टू रिबार, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से मैं रिबार की शेप जो है सेलेक्ट करूंगा। सिंपल मुझे ये चाहिए तो, स्टीरअप्स भी चाहिए, आई मीन स्टीरअप्स चाहिए, यस स्टीरअप्स, दिस इज स्टीरअप्स। यहाँ पर ये जो मेरा प्लेन सिलेक्शन है दैट इज नॉट ओके, तो आई गो टू करंट वर्क प्लेन इज ओके, बट पैरेलल टू वर्क प्लेन मुझे करना है। ठीक है ना, ये मेरा स्टीरअप आया। और इसमें अब मुझे लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्लेस करने हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 बार्स मुझे नीचे प्लेस करने हैं, 5 ऊपर। ठीक है, आई गो टू बार टाइप। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम जब एल सेक्शन व्यू में प्लेस कर रहे होते हैं तो हमें लास्ट के बार्स को जो है एल सेक्शन बनाना है या यू शेप बनाना है, इजीली क्लियर होता। बट सिंस यहाँ पर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, तो हम अब जो भी डिटेल बनाएंगे, जो हम उसमें प्लेस करेंगे, उसमें हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि लास्ट में हमारे ये बार्स बैंड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला बार सेलेक्ट किया 0 0। ठीक है, अभी मेरा प्लेन सही नहीं है, दैट इज वाई ये सही पिकअप नहीं कर रहा है। तो मुझे प्लेसमेंट चेक करना है। करंट वर्क प्लेन इज ओके, प्लेसमेंट मुझे परपेंडिकुलर टू द कवर करना है, क्योंकि ये बार मेरा इनटू द स्क्रीन जाएगा, इनटू द पेपर जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया, और जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो ये 5 बार्स मेरे लिए ओपन हो गए। ठीक है, विथ नॉमिनल स्पेसिंग और इक्वल स्पेसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू चेंज द बार डाया। मान लीजिए मुझे 20 डाया के बार लगाना है। ठीक है, सो जैसे ही मैंने बार डाया चेंज किया तो देखिए इनका साइज भी चेंज हुआ। ठीक है ना, उस तरीके से 5, ऑटोमेटिकली इट इज टेकिंग 5। ठीक है ना, आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, बट अभी एज ऑफ नाउ इट इज टेकिंग 5। ठीक है, 5 मैंने यहाँ पर प्लेस किए, 5 मैंने। ठीक है, सो ये मेरे बीम में बार्स प्लेस हो गए। राइट, अब मुझे सेम चीज को विजुअलाइज करना है, अगर से, या फिर ये कह लीजिए कि मुझे सेकंड लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट लगाना है, तो सेकंड लेयर भी आप यहाँ पर इजीली प्लेस कर सकते हैं सिमिलर तरीके से। ठीक है ना, विद सम स्पेसिंग मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, सेकंड लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट भी आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। आप आई गो टू एल सेक्शन और सी सेक्शन, वहां पर मुझे देखना है कि मैंने कैसे बार को प्लेस किया है। ठीक है, परफेक्टली फाइन है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है हमारी, हमें जो टक्टाइल डिटेलिंग करनी होती है, ठीक है ना, एज पर द कोड। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि आप इसको सेलेक्ट करें, जितने भी आपके स्टीरअप्स हैं उनको सेलेक्ट करें, और विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल पॉइंट्स आप इसको रिड्यूस करें साइज को। ठीक है, आपने ये रिड्यूस किया, फॉर एग्जांपल D/4 तक आपकी स्पेसिंग कम रहती है जनरली। ठीक है ना, तो इसको आपने कॉपी किया और प्लेस किया दूसरे एंड पर। ठीक है ना, दोनों दोनों एंड्स पर इक्वल स्पेसिंग हो गई, बट मिडल में आपकी स्पेसिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो मिडल में जब ज्यादा स्पेसिंग होगी तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, इसी को कॉपी करेंगे आप, कंट्रोल भी करेंगे और इसको आराम से प्लेस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरीके से आप प्लेस करिए, और इनको फिर आप स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस स्पेसिंग को हम एडजस्ट कर सकते हैं, हाउ, मैक्सिमम स्पेसिंग यहाँ पर हमारी 150 है, तो हम इनको 100 कर देते हैं पहले वाली को। ठीक है, इसको हम 100 कर देंगे। राइट, सिमिलरली ऑन द क्लोजर टू द कॉलम फेस विल मेक इट 100, जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बहुत ही कॉमन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जब हम डक्टाइल डिटेलिंग करते हैं। तो ठीक है ना, क्लोजर टू द फेस ऑफ द कॉलम स्पेसिंग हमारी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट ज्यादा होते हैं, शेयर ज्यादा होता है। ठीक है ना, इसी वजह से हमारे यहाँ पर स्टीरअप्स क्लोज होते हैं, बट सेंटर में जब हम जाते हैं तो सेंटर में हमारी स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें वहाँ पर इतने ज्यादा शेयर फोर्सेस नहीं मिलता है, मूवमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें अगर एक नंबर और मैं इंक्रीज कर दूं, तो फिक्स नंबर के हिसाब से अगर, तो इसमें मेरा 10 नंबर अगर मैं बढ़ा दूं, तो ये मेरी एक और बढ़ा देता हूँ, 11 नंबर, मेक इट 11। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर हम
ड्रैग कर लेते हैं हल्का सा। दिस इज हाउ यू कैन प्लेस योर बीम रिइंफोर्समेंट। ठीक है, ये बीम रिइंफोर्समेंट आपका हो गया। अब इसी तरीके से अगर मुझे प्रोपागेट कमांड यूज करना है तो आई कैन यूज दैट प्रोपागेट कमांड एज वेल। लेट्स सी वेदर इट इज डूएबल और नॉट। सेलेक्ट किया मैंने, प्रोपागेट रीबार किया, मैंने ये बीम सेलेक्ट किया एंड आई सेलेक्टेड दिस बीम एज वेल। ठीक है, ये मेरे 3 बीम हो गए। मैंने फिनिश कमांड को हिट किया और उसके बाद नेक्स्ट लेवल के बीम्स को भी मैं सिमिलर वे में कर सकता हूँ। ठीक है, आई सेलेक्टेड दिस बीम, I selected this beam and rebar command, propagate rebar command is activated. Okay, I select this, I select this, I select this. Right? This is how we can place rebars quickly. Right? तो आपका slab reinforcement we have covered, beam reinforcement we have done just now, and column we have already done. Raft में भी हम कर चुके हैं। द थिंग टू रिमेम्बर इज दैट कि ये जो लास्ट वाले हमारे कॉलम्स है, लास्ट वाला हमारा जब कॉलम है एंड कॉलम, वहां पर हमें बैंड्स को, बार्स को बैंड करना होता है। ठीक है ना, तो लेट्स सेलेक्ट दिस बार फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे ही आप बार को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज पैलेट में देयर आर सम ऑप्शंस। आपको हुक स्टार्ट में हुक देना है, एंड में हुक देना है, कितना हुक देना है, कितना नहीं देना है, जीरो रखना है, वट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हुक एट द स्टार्ट, कोई हुक नहीं है अभी, ना स्टार्ट में ना एंड में, दिस इज अ प्लेन बार। सो यहाँ पर हमें कुछ नहीं देना, दिस इज ओके हियर, बट दिस इज नॉट ओके हियर, वी नीड टू बैंड दिस बार अपवर्ड्स। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि इसका एंड स्टार्ट, स्टार्ट ये है या एंड ये है। तो इट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड, स्टैंडर्ड 90 डिग्री। देखिए स्टैंडर्ड 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसे ये बार बैंड हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। इसी तरीके से ऊपर वाले बार को भी हमें नीचे को बैंड करना है। ठीक है ना, इस तरीके से ऊपर वाला बार भी नीचे को बैंड हो जाएगा। नॉट ओनली दिस, हमारे सेकंड लेयर के भी जो बार्स हैं उनको भी हमें 90 डिग्री हुक में बैंड करना है। राइट, इज दिस फाइन, दिस इज ओके। और इसको हम आगे पीछे दिखाने के लिए ऐसे भी मूव भी कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे, वी वांट टू शो दैम इंडिविजुअली और अलग अलग सेपरेट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर reinforcement. I think I have covered in detail. Now we shall be moving, we shall be moving to the what I would say, take off, quantity take off। ठीक है ना, वो important part है। फर्स्ट से पहले मैं ये कवर करना चाहता था। Just give me 1 minute, let me take a sip of water. थैंक यू। और आपको इसको 3D में अगर व्यू करना है, देखिए अभी इट्स नॉट विजिबल इन द 3D। ठीक है, मैं इसको ऊपर सेक्शन बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बट स्टिल ये यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। ठीक है ना, सो द सिंपलेस्ट वे इज टू वेयर इज दैट, या सेलेक्ट ऑल योर reinforcement, राइट क्लिक, कोई भी एक reinforcement सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और सेलेक्ट सिमिलर में जाइए, ऑल इंस्टेंसेस इन द इंटायर प्रोजेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जितना भी स्टील आपका यहाँ पर लगा हुआ है वो सारा स्टील आपका सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन यू कैन गो टू ग्राफिक्स on the properties palette box on the left hand side, visibility states, go to edit and select this 3D view, 3D view name, view type 3D view, view name 3D, and view unobscured को आपको राइट क्लिक करना है, आई मीन चेक बॉक्स ओपन करना है, एंड देन यू कैन प्रेस ओके। Now, if you go to 3D view, you can easily see all the reinforcement details, whatever you have modeled until now. Correct? This is your all steel, जितना भी आपने अभी तक बनाया है, लगाया है, whatever. You can visualize all that steel. ठीक है, इस तरीके से आप पूरी बिल्डिंग की reinforcement डिटेलिंग करते हैं। राइट, बीम्स हैं आपकी, ठीक है ना, स्लैब्स हैं, कॉलम्स हैं, राफ्ट फाउंडेशन है। राइट, सो जब आप ये करते हैं, जस्ट ठीक है, सो we are done with the reinforcement detailing part. Okay, this is very important, and you can always, you know,
utilize these skills. Okay, propagatory bar and all. If you have any doubts, then ask me anytime. Okay. इसके बाद हमें जो करना है वो है हमारा uh, वो है हमारा which part is that? Uh, yes, quantity takeoff. So I'm just taking a pause here, and we'll start after 2 minutes. Okay, you can take a short break for that. I'm just pausing here. Okay, just take waters and make yourself comfortable. Take 2 minutes, relax, and then come back. Join the class. We'll start with the quantity takeoffs.